Hello everyone, I am Dhyana with Dhanvi of Standard 11th from Divyapat campus. Welcomes you all to Heroes of Ahmedabad Season 2. Today we have a very special personality with us who is the founder of many social awareness programs like Vajra O Force, in which women and children are empowered through adult literacy, adolescent health, primary education and counseling, by which more than 3,000 people got benefited out of it. She had also run other related programs such as Police Heart, Defense and Dance, Halla Bol and many more. She has been awarded by Dhirubhai Ambani Memorable Award. She is a renowned writer as well as a blogger. We are thrilled to welcome Ms. Suzanne Khambata to Heroes of Ahmedabad Season 2. Thank you, beta. Ma'am, what made you choose such an offbeat and unconventional career? See, when I start, I'm coming from a business family. So, business was in my blood, or is still in my blood, and I always thought that I want to do something on my own. Now, the most important point is that, when you want to do something, initially you are not aware what you want to do. But then I thought at that time when I started thinking that what I want to do, the only thing which I found out was IT, information technology, because it was a booming field, it was an upcoming field. And on top of that, I never wanted to go in, because at that point of time, normally the ladies or the girls, you used to choose careers such as architect or fashion designing or things like that, which I never wanted to, and I would never put myself as a fashion designer. I am a big zero in fashions anyways. So coming back to the IT was a field which requires you to use your brains, your mind, your logic, your thinking, your reasoning, a lot of things that come into it. And since childhood I've been taught that knowledge is power. And so when knowledge is power, and I've been taught that anything in life you do, you will always be successful if you have the knowledge. And knowledge you can get from your studies. So that is what I want you people to do. So coming back to that point that knowledge is power, I thought I would like to get into the IT field, because in that field, as I already explained, what was all required. And the best part, and the second best part about this field was that whenever we want to start something on our own, start some business or do something on our own, you do not require a big capital. Because if let's say I want to start a chemical factory, I require a huge capital. Or if I want to get into even in a business of, let us say if I want to start a taxi service business, so I'll require a huge capital. But coming back to even a restaurant, I'll require a huge capital. But coming back to this thing, if I want to get into IT, I do not require a huge capital. So this was one of the second reasons that made me get into this field. But the most important reason was that yes, it was a challenging field for me. It's something new to do on regular or a daily basis. Lot of research would go behind doing or into IT. So this was the main of the reasons why I got into IT. Can you share your journey into the world of social worker? How did you decide to become a social worker? That's a very important thing. It happens that I feel that in social work you do not require a particular age. Okay, I'll earn money and then do social work. No. And in social work you don't even feel that every time that money makes things happen. No, money is not important. Money is always secondary. Even in COVID, if you saw that people used to come out and help. Help is most important. Giving your man hours or giving your time is most important, because just giving money is not the only thing in social work. Now it happens that in 2012, if you girls remember, that Nirbhaya happened. Do you remember Nirbhaya at Delhi? Okay, Nirbhaya was an unfortunate incident which happened wherein a girl was brutally, very brutally raped, and because of Nirbhaya, the whole nation, means whole of India, got very upset and very angry that why these ways our ladies are or our girls are treated. This is not this is not a way a girl, forget a girl, anyone should not be treated this way. So there was a big anger, aggression in the country. Same thing happened with me. Now it happens that being into technology, I dabbled into a lot of technology, like maybe at one point of time websites or softwares, or being the first broadband ISP for the state of Gujarat. So dabbling with technology, and as I told you, I love to do a lot of research and all that. So I thought that why can't we, when our government talks of going to the moon, when our government talks of all different technologies, then why can't we use technology to rescue a woman in an emergency situation like this? Because normally if you recollect, the case was that they used to dial the lead Nirbhaya girl dialed 100 number, but for whatever reasons it was not picked up. So presumably if she had dialed 100 number and if it would have been picked up,
Or if we had a technology wherein the police would have known that she's into an emergencies like this rape or molestation or teasing or kidnapping or whatever, and the police could have rescued her, and thus we could have saved one girl. So now what I did was I said, okay, let me use technology. So we did some R&D and we put up a technology in place. Now the most important thing at that point of time was that all the, unfortunately, you know, I mean, though we talk of equality, I would not say that India is behind that, but yes, it is. There is still a huge difference between the equality, men and women equality. So now what happened that at that point of time and even today, girls do not have a smartphone. So, you know, otherwise you can think, oh, if it is a smartphone, you put an app, start your GPS and people can locate you or trace you, but no. At that point of time, girls never had a smartphone. So we put up a technology that you just dial a police helpline 1091, and the police 1091 was anyway a ladies helpline. So when you dial 1091, the police will come and rescue you even if you are unable to speak. Then we put up a standard operating procedure, that is called SOP, in place, that if the police gets a missed call, like let's say if somebody is harassing me right now, then you don't expect that I will be able to speak, because that person will not maybe allow me to speak, or he will throw away my phone or something like that. So even if you give a missed call to the police will try to call you back 2 to 3 times. If you are able to answer, you can shout, help, help, save me, save me. You just have to shout, so the police knows that you are in an emergency situation and they'll locate you. That was the technology what we put into place. And secondly, what we did, that even if you are not able to speak, the police will give you missed call 3 times. The police will call you 3 times. If you are unable to pick up the call, police will know that you are in an emergency and they'll come to rescue you. Either ways. So this is technology what we put. So when this Nirbhaya happened, I thanks to the Gujarat government, thanks to the additional chief secretary, home department is governing the police department. So they came into the picture and they helped me, and with a joint effort we could put this 1091, this technology which we call Police Heart, in place. Now it happens that when I got into this, unfortunately, you know, let us accept one thing, that the government at that point of time did not have much. We had to do a lot of awareness drive because nobody knew about this technology. So then again they involved me, that wasn't, because anyway at that point of time I was already into my business of IT. And I used to go to a lot of schools and colleges to talk about IT, customer relation management, technology, networking, you know, all those things I used to go and talk about. So anyway, I was in touch with a lot of schools and colleges. So they asked me to go there and make this awareness program. Now it happens that when I started this awareness program, you know, because I'm a businessman, so you know, I always wanted to feel that, okay, let me put this technology, let me give it to the government, the police department, and I'll then get out and again get into my business. But unfortunately or fortunately, it happens that when I started talking to people about, to schools and colleges and to girls like you, and they pose so many questions which were, in many times I felt very awkward, or I really felt that I should do more in this field, and that is how I came into this field. Nice. So ma'am, according to you, what is real woman empowerment? See, for me, a real woman empowerment will come, this is what I always tell, that, you know, let us presume, I'll just give an example, that let us say that currently it's 12 o'clock in the night and you want to go out and have an ice cream, right? So if you say, Mom, I want to go out and have an ice cream, for the first thing you will have to do is change your dress, right? You can't go in your night dress or whatever. Yeah. Second, what you will have to do is, your mom will say, okay, take your brother along, right? For me, a real woman empowerment and freedom comes there, that, let's say, because I know that if my brother says that, okay, I want to go and I have an ice cream, what he will do? He will change his dress? No, he will go in his, sorry, but chadda, or whatever it is, chadda t-shirt, right? He will just pick up his motorbike key or car key and go off. His mother will not tell him, ke beta, sister ko le ja. Will she tell her? No, na? This is what is real woman empowerment about. This is what the freedom is about. Freedom is not that, okay, behan jayegi, freedom hai na, she has the freedom, she can go out, but she has to take her brother. No, that is not freedom. So this is what this is not empowerment. So this is what a real empowerment for me. Second, woman empowerment, that she can take her own decisions, man. Important decision. Yeah, let us accept that we all, aap aur hum sab bahut privileged hai. We are living in a society, your parents, I should really thank and salute your parents, and I should also salute your institute, that they are giving you so much good training, and they are giving you all the available resources wherein you can feel privileged. Let me use the word privileged. Unfortunately, because you know, there are places, there are cities, there are rural areas where girls do not get these privileges. So for me, ultimate woman empowerment is that you are just this 20 or 30% strata of the society who are privileged. The 60-70% strata of the society, women I am talking of, are not yet privileged.
So I would like that they get that privilege. Unfortunately, let us still accept that. This is something I hope I'm not diverting, but unfortunately, I still know that during COVID, you know, in rural areas, गांव में जब husband बीमार होता था तो wife उसकी सेवा देती थी COVID में, लेकिन कोविड वाइफ को लग जाता था तो उस वाइफ को उसको भेज देते थे उसके मायके पे कि भाई तेरे को कोविड हुआ है तो मायके जाके ठीक हो गया. So this is where मैम, this is where I think के हम that's why I use the word privileged. ठीक है कि हमारे पास है, but we will have to still fight for them and see to that we get this equality, and this is what women empowerment is about. And third point, women empowerment कहाँ होता है कि if a girl can take her own financial decision कि घर में मुझे ये टीवी लेना है, ठीक है, या घर में मुझे, सॉरी टू टेल बट आई मीन यू नाउ पीपल आर ग्रोन अप इनफ के भाई शी कैन टेक अ डिसीजन कि शी वांट्स अ चाइल्ड नाउ और शी डजंट वांट इट नाउ एंड शी वांट्स इट आफ्टरवर्ड्स. अनफॉर्चुनेटली उसका ये सारे डिसीजंस आज की तारीख में भी पढ़े लिखे बहनों में भी नहीं होता है. So this is where real women empowerment is, and I'm seeing a very bright future. Don't worry. Thank you. हर इंसान की लाइफ में उनका एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है. सो हु इज योर सोर्स एंड व्हाई? अपना फंडा लाइफ में पहले से क्लियर है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं करने का. मम्मी पापा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहते हैं, क्योंकि द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई टेल यू वन थिंग, बिकॉज यू आर लुकिंग एंड सीइंग देम ऑन डेली बेसिस. ड्यू रिस्पेक्ट सबको, डोंट फील बैड, बड़े बड़े लोग फील बैड, बट उनकी ब्रांडिंग होती है, ठीक है, होते कुछ है दिखाता कुछ है. लेट अस एक्सेप्ट दैट. और बड़ी बड़ी बुक्स लिखेगा, कई घोस्ट राइटर होते हैं, खुद को टाइम कम मिलता है यार, मुझे बुक खुद लिखनी है, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, तो उनको भी मुझे पता है, लेकिन बुक लिखेंगे ना, झट झट के नाटक करेंगे. नॉट फॉर एवरीवन, बट मे बी आई एम टॉकिंग ऑफ 80-90%, नॉट 10% सही है, बट अभी उसमें व्हाई शुड आई टॉक ऑफ 10% व्हेन आई नो द 80-90% क्या करते हैं. ठीक है, आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली. जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा विजन था, अरे क्या विजन था भाई, हम यहाँ बिजनेस में बैठे, हमको पता है विजन कुछ नहीं होता है. सॉरी, डोंट फील बैड, बड़े लोग, बट उनका भी विजन नहीं होता. बिजनेस करना विजन होता है, बट फिर क्या धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना होता है. मुझे जब मैंने मेरा बिजनेस चालू किया पता था, मैंने तो सॉफ्टवेयर से बिजनेस चालू किया, मुझे पता ही नहीं था मैं ब्रॉडबैंड में आने वाली हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैं सोशल करने वाली हूँ, सोशल वर्क में आने वाली हूँ, सोशल फाउंडेशन चालू करूंगी. तो आप समझो, इसलिए ऐसा कोई बड़ा विजन था ना, ये बड़ा है, कुछ नहीं होता. सो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये लोग यू नो फिर ये दूसरे लोग उनको वो क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग करती है. इसलिए कमिंग बैक टू, इसलिए सिंपल फंडा कि इफ आई सी माय फादर हु वेक्स अप इन द मॉर्निंग अर्ली एंड गोज टू द फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री में क्या कहते हैं 3 शिफ्ट होती है तो फैक्ट्री जाना होता है, वो से रात को ऑफिस जाके रात को घर आते हैं, वो मेरा इंस्पिरेशन है. आई हैव सीन माय फादर तो संडे भी, क्योंकि स्टैगरिंग मान लो कि फैक्ट्री की स्टैगरिंग वेडनेसडे थर्सडे होती है, स्टैगरिंग हॉलीडे, तो वेडनेसडे थर्सडे वो फैक्ट्री में ऑफिस में काम करेंगे और संडे को फैक्ट्री चालू होती है तो फैक्ट्री में जाएंगे, यानी ही वर्क्स ऑल द 7 days ऑफ द वीक. वो इंपॉर्टेंट है मैडम. वो बड़े बड़े लोगों ने बात की ना, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं. इसलिए मेरे पेरेंट्स, अब मम्मी जो, लेट अस एक्सेप्ट वन थिंग कि अगर घर में एक गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई गाड़ी हमें योगा में ले जाएगी या ये गाड़ी हमें लाइब्रेरी ले जाएगी, क्यों नहीं, मम्मी हमें चलते ले जाएगी. बिकॉज क्यों चलते ले जाएगी, क्योंकि मान लो 1 किलोमीटर का रास्ता है तो गाड़ी, या 1.5 किलोमीटर का रास्ता है तो गाड़ी की जरूरत नहीं है. चलना सीखो, चलोगे मम्मी के साथ तो आपकी बॉन्डिंग होगी, आप लोग बात कर पाओगे, लाइब्रेरी ले जाएगी मम्मी तो वहाँ बॉन्डिंग होगी. ये इंपॉर्टेंट है मैडम. बड़े बड़े ये माता ना वो क्या, मेरे को सॉरी टू टेल बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट फर्दर, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल. सो मम्मी पापा शुड बी योर गुरु एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ. ठीक है, जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरी बात बता दूं, बड़े क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि वो मम्मी भले पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाती है, और फिर क्या होता है, वो बच्चा बड़ा हो जाता है, हाथ में 2 मोबाइल आ जाता है, 2 ज्ञान आ जाता है, तो मम्मी को सिखाने लगता है. इसलिए मैडम मैंने ऐसे भी लोगों देखे जो बेचारी मम्मी ने अपना सब कुछ त्याग बलिदान किया होता है, वो उसका बच्चा उसको मिसट्रीट करता है. मैं बोलती हूँ मम्मी को कि यू शुड ऑलवेज मेक योर चिल्ड्रन रिमेंबर कि बेटा होता है और माँ होती है, या बाप होता है. बेटा बाप नहीं बन सकता है, आप समझे. सो ये जरूरी है, और ये मैं मम्मियों को सिखाती हूँ, क्योंकि होता क्या है, मम्मी को प्रेम प्यार में, मेरा दुलारा, मेरा लाडला में, शी लूजेस हर डिग्निटी, एंड दिस इज व्हाट आई डोंट वांट. सो यू पीपल आल्सो हैव टू सी टू इट कि जो भी मम्मी पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लेकिन थैंक्स टू योर पेरेंट्स तो तुम लोग आज ये पढ़े हो, आज यहाँ खड़े हो, बैठे हो, और भी आगे जाओगे, थैंक्स टू देम. सो भले वो लोग नहीं पढ़े, बट यू शुड ऑलवेज सी टू इट कि वो माँ है और बेटी है. ठीक है. How do you accelerate your progress when you collaborate with other stakeholders of the society? See, I always believe in working in a team. क्योंकि let us accept one thing कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे, सोशल प्रोजेक्ट लो या बिजनेस लो, कोई भी प्रोजेक्ट लो, we ourselves we you know there's a SWOT analysis, strengths, weakness, opportunities, threats, जो हम हमारे खुद की करते हैं. अब हम देखते हैं कि भाई मेरे पास ये वीकनेस है, तो अब उस वीकनेस को मुझे ओवर करने के लिए I have 2 ways. One way is what? That one way is that okay, I learn it and do it.
बट दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। एंड वीकनेस हमेशा लर्न करोगे तो आपको न्यूट्रल ले जाएगी, आपको स्ट्रेंथ कभी बना नहीं पाएगी इतना जल्दी। लेकिन जब आप किसी से कोलैबोरेट करोगे या उसके साथ में काम करोगे तो आपका काम इजी भी हो जाएगा, फास्ट भी हो जाएगा, एंड आपको जो आप जिस लेवल पर पहुंचना चाहते हो जल्दी पहुंच सकते हो। सो फंडा ये कि जैसे कि मान लो कि मेरे सोशल वर्क में मेरे को पुलिस की हेल्प चाहिए थी, क्योंकि अदरवाइज ये पुलिस हाट कभी चल नहीं सकता था। हल्ला बोल मुझे स्कूल्स कॉलेजेस सोसाइटी की हेल्प चाहिए थी। आप मेरा ये डिफेंस और डांस में मेरे साथ जो सेल्फ डिफेंस वाले बंदे थे वो सब आ गए, डांसर्स आ गए, क्योंकि डिफेंस और डांस में हम लोग डांस के थ्रू सेल्फ डिफेंस सिखाते थे। इसलिए ये क्यों सिखाते थे, ताकि क्योंकि पीपल हैव अ माइंडसेट, गर्ल्स हैव अ माइंडसेट कि लेटर से कि 25 साल की लड़की बोलेगी कि मेरे को सेल्फ डिफेंस सीखना नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे कूद के सिखाते ना वो कराटे वाले, तो ऐसे कूदते रहे भाई, कूदने से सेल्फ डिफेंस थोड़ी ना होती है, वो अलग बात है, अभी लेट मी नॉट गेट इनटू दैट। बट द थिंग इज द स्किल, सेल्फ डिफेंस द स्किल इनिशियल। मैं वो कराटे वाली या वो किसी को गिराने वाली वो पिक्चर वाली सेल्फ डिफेंस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी से छूट के भागने की सेल्फ डिफेंस की बात कर रही हूँ। क्योंकि हम किसी भगवान ने एज अ लेडी हमें ऐसा बनाया है कि हम लोग सामने वाले को मेल को वी कैन नॉट व्हाट यू कॉल ओवरपावर दैट मेल फॉर अ लॉन्गर टाइम। फिर मेंटल ओवरपावर करके स्किल लेके भाग सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, ये हम सिखा सकते हैं। हाँ, फिर आपने कोई ब्लैक बेल्ट ग्रीन बेल्ट के जो वाली बेल्ट करी हो तो शायद हो सकता है 2-4 पंच से सामने को गिरा सकते हो। सो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर कि सो फॉर दैट सो दिस इज हाउ वी कनेक्टेड विद ऑल द पीपल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन, बिकॉज ऑफ द टीम वर्क, मैडम हमारे साथ वॉलंटियर्स में भी बहुत सेवाएं दी है। आप जो पहले बताए ना सोशल वर्क, आप जैसे बच्चियाँ, आप जैसे बच्चे, उन्होंने भी हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में वॉलंटियर, क्योंकि इंसान चाहिए, हाथ चाहिए, सिर्फ पैसा, मैंने पहले ही बोला पैसा जरूरी नहीं है, पैसा तो आता है, इंसान चाहिए जिनका अच्छा नेक भाव हो, जो हमें हेल्प कर सके। ऐसे मेरे साथ बहुत लोग जुड़े, दैट इज हाउ वी कुड मेक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। सो एंड गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प मी लॉट, सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, डिपेंड्स, हल्ला बोले तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुझे हमेशा हेल्प की है। सो विद लॉट ऑफ हेल्प, एंड लेट अस एक्सेप्ट वन थिंग कि विदाउट हेल्प आप आगे नहीं बढ़ोगे। आज मैं अगर जो यहाँ बैठी हूँ तो 2 लोग इंपॉर्टेंट हो, एक मेरी टीम इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आज बैठी हूँ तो मेरी जो दाल रोटी है वो मेरी टीम मेहनत करके मेरे बिजनेस में मेरे को निकाल रही है। दूसरे लोग, आप जैसे सब लोग इंपॉर्टेंट है जो वॉलंटियरिंग करते हो। सो विदाउट टीम एंड विदाउट हेल्प फ्रॉम पीपल, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या जो भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी हेल्प होती है, तो ही आज मैं यहाँ बैठ के आप लोगों से बात कर सकती हूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब वो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको कैसे लेना, उनसे बात करना, उनको समझाना, वो भी इंपॉर्टेंट है कि भाई लेट्स से, जैसे कि और कई बार कॉज इज इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मेरे साथ आज वॉलंटियर्स जुड़े थे तो ये हल्ला बोल, और जिसके लिए एक हमारा हल्ला बोल सीजन 1 में तो मेरे साथ 800 वॉलंटियर्स एक दिन के लिए जुड़ गए थे। एंड वॉलंटियर्स यानी मैडम निस्वार्थ आते हैं, खुद का पैसा वो पेट्रोल करके आते हैं, खुद का टाइम करके आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हाँ, ऐसे भी कुछ लोग मिल गए, सॉरी अब बुरा मत मानना, जिनको वो क्या एक बिस्किट देके 4 एंगल से फोटे पाड़े वाले भी मिले थे, तो वो उनसे मैंने फिर दूर रहती हूँ। एंड सॉरी, वो लोग भी बुरा नहीं माने, क्योंकि मुझे पता है कोविड-19 में हमने रसोड़े, थैंक्स टू पीपल हु डोनेटेड, उनके डोनेशन के हमने रसोड़े चालू किए थे वो खिलाने के लिए। तो मेरे पास, सॉरी टू टेल, भाई बुरा मत मानना, लेकिन बोलना भी जरूरी है ताकि लोगों को पता चले कि सब नेताओं के पीए टाइप के फोन भी आ गए थे। वो ये सो कॉल्ड, सॉरी बट वो जो वो खेस पहन के घूमते, उनके भी फोन आ गए कि हम बांटेंगे वो खिचड़ी या जो भी। हमने बोला नहीं भैया, मेरे को पुलिस ने बहुत हेल्प की, पुलिस ही बांटेगी, आप लोग तो भाई लॉकडाउन हो, घर में ही बैठो। सो कहने हो रहा, पकाने का उनको फाता ही नहीं था। जैसे कि किचन भी हमने चलाई, तो क्योंकि किचन के लिए लोग चाहिए थे हमको, किचन वरना चलेगी कैसे। फिर खिचड़ी में आ गया, वरना रोज बताकर छिलके तुम कितना कर सकते हो, पूरी बेलने की कितनी, खिचड़ी से इजी थिंग, तो उसके लिए भी इंसान चाहिए था। तब तो नहीं मिला, काम करने के लिए नहीं मिला, लेकिन वो बांटने के लिए हमको बहुत मिल जाते थे। इसलिए बोलती हूँ, इसलिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू, ऐसे भी लोग मिलेंगे। सो वो डिसीजन आपको लेना है कि भाई ऐसे लोगों के साथ 4 फोटो पड़वाने से लाइफ में कुछ नहीं मिलता है भैया। वो फेसबुक पे और क्या वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे 2 बार वाहवाह हो जाएगी, लेकिन तीसरी बार अगला समझ भी जाएगा कि तुम लोग चीटर हो। एक्सेप्ट दैट नो, मैंने कहा चीटिंग लोगों को समझ आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि आप लोगों को, इसलिए आपको समझा रही हूँ कि आपकी जनरेशन को ये पता है कि अरे फेसबुक पे उसके इतने फ्रेंड है, इतना सारे, भाई कुछ नहीं है। अभी एक बार बीमार पड़ और देख 4 लोग भी तेरे को मिलने नहीं आने वाले, मिलने आने की बात करी हो। फेसबुक पे ऐसे अंगूठे मारेंगे या वो कुछ लिखेंगे, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैडम, कि लोग निस्वार्थ काम करें। और मैं ऐसे लोगों के साथ ही काम करती हूँ, बाकी लोगों के साथ तो मैं झगड़ा ही कर लेती हूँ ताकि जान छूटे। चलिए। As you have been adorned with so many awards in your life, so how do you feel while remembering such proudful moment? मैडम ये मेरी पूंजी है। आई टेल, मेरे पास क्या पूंजी है, तो ये मेरी पूंजी है। These awards are my पूंजी। और अवार्ड नहीं बोलो, अवार्ड बोलो, मोमेंटो बोलो, इसको मैं अपनी पूंजी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आई फील कि आई हैव गिवन समथिंग बैक टू द सोसाइटी। ऐसे भी समझे, पैसा सबको पसंद है, बट जरूरी नहीं कि पैसा ओनली थिंग इन लाइफ है, मैंने पहले ही बोला है। इससे मेरे को एक रात को अच्छी नींद आती है
कि चलो मैंने अपना बेस्ट दिया, क्योंकि यू नो व्हेन यू गिव योर बेस्ट, जो भी आपका 100% आप दो, मेरा 100% कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, इनका कुछ और होगा, बट 100% देना जरूरी है। फिर आप वो मुझसे तो नहीं होगा, कंटाला आ रहा है, इतना जल्दी कौन उठेगा, ये कर, तो फिर दैट मीन्स यू आर नॉट गिविंग योर 100%। सो दिस इज मैडम सब जब आपको ये मिलता है ना, आई ऑलवेज टेल पीपल के दिस गिव्स किक इन माई लाइफ। जब रात को 3 बजे सो के सुबह 6 बजे उठना होता है तो क्या किक देगा, क्योंकि 3 घंटे की नींद होती है, कम पड़ती है, फिर भी अपने को उठने की जो मोटिवेशन होती है, ये सब चीज़ होती है कि नहीं वी आर डूइंग समथिंग, और हमारे को क्या कहते हैं, लेकिन ये 3 घंटे की नींद बहुत अच्छी आ जाती है। एनीवे वी आर डूइंग समथिंग एंड वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी विच इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वाई मैडम मैं तो बोलती हूँ कि अवार्ड जो आने दो करती हूँ। लेकिन हाँ एक चीज़ है, अब बाहर अच्छा आपने पूछा, थैंक यू। अब मुझे नफरत हो गई एक चीज़ से भी, सॉरी टू टेल, अवार्ड भी बिकते हैं। अरे अरे मैं तो पागल हो गई हूँ यार, सॉरी बट बुरा मत मानना अगेन भाई, मैं तो पहले से भी डिस्क्लेमर लगा ही देना कि यार ऐरू गैरू नट्ठू खैरू ऐसे अवार्ड लेके खड़े हो जाएंगे, मुझे अवार्ड मिलाएगा यार। यहाँ पर जानते हैं कि कितने के किसके, कोई नेता हो तो ये रेट चलता है कोई अभिनेता हो तो ये रेट चलता है, और क्या रेट में तुम अवार्ड लेते हो यार, वो स्पा वाले वो भी क्या, मुझसे मत बोलो यार, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बट सो ये चीज़ से मुझे नफरत होगी, क्योंकि अब देखा जाए तो मैडम अवार्ड की भी वैल्यू सच बोलो तो कोई रही नहीं है, क्योंकि ऐरू गैरू नट्ठू गैरू, अब तो पेपर वाले लो, मीडिया वाले लो, अब तो हमको रोज मेल आता है ऐसे कि ये कोई जात के मैगजीन के नाम है, क्या पावरफुल वुमेन ऑफ इंडिया। अरे भाई मेरे को 20 पावरफुल वुमेन ऑफ इंडिया में आप ये पैसा दो, लाख रुपए तो हम ये करेंगे वो करेंगे, आपका 20 पावरफुल वुमेन में वो पेपर वाले का मीडिया वाले का नाम भी ना सुना हो, फिर तुम्हें ऐसे दिखाने के लिए लालच करने की उनका मैगजीन का हेड रखेगा, फिर तुम्हारा फोटो देखो हम ऐसा देंगे, अरे क्या है ये, लेकिन सामने लाख रुपए 2 लाख रुपए, ये कोई मजाक है क्या, 20 पावरफुल वुमेन, और फिर ऐसे में लेकिन लोग देते हैं, क्या करें, और बेवकूफ बनने वाले बेवकूफ बनते। इसलिए मैं समझाती हूँ कि भाई अवार्ड पैसे से मत लिया करो, तुम्हारी खुद की इज्जत जाती है, क्योंकि अगले को तो पता चलता ही है। अवार्ड के साथ अब एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि चालू, इसलिए मैंने पीएचडी बंद कर दी, मुझे पीएचडी करनी थी, मैंने 2 बार एडमिशन भी ली, क्योंकि आई वांटेड अ जेन्युइन पीएचडी। डॉक्टर वाला नाम अच्छा लगता है, यू नो अलंकार अच्छा लगता है, अरे अभी ऐरू खैरू नट्ठू खैरू लाख 1.5 लाख 2 लाख में पीएचडी दे दूं, डॉक्टर बनना था। अरे मैंने कहा मुझे नहीं बनना डॉक्टर रुझान खंबाटा, इसलिए अब कई पैनल्स में सब डॉक्टर लिखा होता है, मैं खाली रुझान खंबाटा ही सही हूँ भैया। इसलिए यू नो अल्टीमेटली फॉर मनी ये सब जब होता है ना बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैंने अपना प्रण ले लिया कि मैं इसकी अवेयरनेस करूंगी कि भाई ये डॉक्टर पीएचडी यहाँ भी बिकती है ना, एक्जैक्टली पीएचडी नहीं कहते, जो आगे डॉक्टर का वो जो अलंकार लगता है, और ये अवार्ड भी बिकती है। इसलिए अब देखा हो तो मैं कंटाल गई हूँ, लेकिन एनीवेज बोलिए। How are you balancing your personal life and professional life? क्योंकि मैं जो काम करती हूँ वो मेरा पर्सनल भी है प्रोफेशनल भी है ना। अगर आज से बात करती हूँ सोशल काम करती हूँ तो ये मेरा पर्सनल काम भी है, मुझे अच्छा लगता है। और एंड द गुड पॉइंट इज कि आई मीन थैंक्स टू माय फादर, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, आई एम अ वर्कहॉलिक। इसलिए मेरे को तो काम बोलो, हॉबी बोलो, पैशन बोलो, जो भी आप बोलो, इसलिए सब बैलेंस ही हो जाता है। क्योंकि देखो मैडम, चलो मेरे को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बुक्स कब करती हूँ, मैं अपने जिम में होती हूँ, तो आजकल ऑडियो बुक्स आ गई है, तो आराम से जिम में वो कैसे 4 बॉटल वोडका वाला साउंड सुनने से तो अच्छा तुम ऑडियो बुक सुन लो यार, अच्छी बात है। इसलिए ये मेरा काम हो जाता है। ट्रैवलिंग में भी ऑडियो बुक मेरा काम कर लेती है। अब मेरा दूसरा प्यार, और ये बुक से नॉलेज बहुत आती है मैडम, ट्रस्ट मी। ये सोशल मीडिया टिक और रील्स से कोई नॉलेज नहीं आती है, ठीक है, ऐसे वो इससे भी नहीं आती है, लेकिन नॉलेज आ जाती है, तो वो मेरी बैलेंस हो गई। फिर मेरे को कुछ नया काम रिसर्च करना मेरे को बहुत पसंद है, आईटी फील्ड में मेरे, तो वो मेरा काम चलता रहता है। तो यू नो अल्टीमेटली मैडम जो मैं करती हूँ वो मेरा सोशल बोलो, प्रोफेशनल बोलो, पर्सनल बोलो, हॉबी बोलो, आप जो बोलो सब अपने आप बैलेंस हो जाता है। When you were of our age, did you know what you want to do in the future? And were your parents supportive of the decision? कभी नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन मैडम, सुपर डुपर क्वेश्चन पूछ लिया। आपकी एज क्या है बेटा? 15 साल। इतना पता था कि पप्पा का बिजनेस ज्वाइन करना है, इतना ही पता था। और इसलिए थोड़ी वो लेथर्जी भी आ गई थी कि अपने को क्या पढ़ने की जरूरत है, पप्पा का बिजनेस ज्वाइन ही तो करना है, समझे। इसलिए बिल्कुल नहीं था आप वो कोई गलत फहमी में देता। और एक और चीज बता दूं, मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी, 10th स्टैंडर्ड के बाद वो बोर्ड होती है ना, बोर्ड के बाद छुट्टी होती है, तो मैं मेरी पप्पा की फैक्ट्री पे जाती थी। क्यों जाती थी पता है? चलो आप बताओ, मैं मेरी पप्पा की फैक्ट्री पे क्यों जाती थी? गैस करो, चलो सीखने। फिर आप बताओ। अरे यही आप लोगों में यही प्रॉब्लम है, ये सब बुक्स पढ़ी है ना आपने, इसलिए सब हीरो बनने के लिए। मैं पप्पा की फैक्ट्री सिर्फ इसलिए जाती थी कि मैं अपने फ्रेंड्स में वहम मार सकूं कि भाई मैं पप्पा की फैक्ट्री जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, सब मस्ती होती है दिमाग में, कोई ऐसे हीरो बनने का नहीं होता। ये तो आप लोग सब बुक पढ़ते हो कि भाई ये फलाना बचपन में ये था, कुछ नहीं होता, सब झूठ लिखते हैं। सच्ची बोलती हूँ, मैंने देखा नहीं। हाँ 10% सच होगा, 90% सबने अपनी स्टोरियां बना बना के। आजकल तो ये स्टोरी चलती है। मैं थोड़ा सा शेयर्स में काम करती हूँ। मैं गरीब था,
फिर मैं शेयर्स में आया, मैं एकदम गरीब घर से था, अब मैं एकदम अमीर बन गया। मेरे फादर के पास घर नहीं था, मैंने घर खरीद लिया, ये वो, क्योंकि उसको अपना कोर्स, वो जो शेयर्स का वो कोर्स सेल करना होता है, और वो शेयर सट्टे में तो शेयर में तो कमाता नहीं है, लेकिन 2-5 करोड़ कोर्स सेल करने से कमा लेता है। इसलिए ये सब गरीब वाली स्टोरियों से तो मैं परेशान हो गई हूँ। और साथ में ये आपने जो बताया ना, मैं तो बचपन फुल एंजॉय किया है, मस्तियाँ की है, कोई पढ़ाई लिखाई का कुछ इतना ज्यादा नहीं है दिमाग में, था भी नहीं, है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। और पप्पा की फैक्ट्री सिर्फ वह मारने जाती थी, याद करना। What do you like the most in your profession and why? प्रोफेशन में देखो, आपको ये अच्छी क्वेश्चन पूछा। मैंने जब अपना बिजनेस कैरियर चालू किया तो मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती थी, अभी भी शायद हूँ ना। अब हुआ ये कि मेरे को सॉफ्टवेयर कोडिंग बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो मेरी इंटेलिजेंस को निखारता था। मुझे ऐसा वहम था कि मैं एकदम इंटेलिजेंट और एकदम होशियार हूँ। अब क्या हुआ मेरे को कि इसलिए आई वॉज मोर इनटू कोडिंग एंड ऑल दैट। फिर देखा कि भाई कोडिंग करने से माल तो बिक नहीं रहा है, अब तो फील्ड में जाना पड़ेगा। अब सुन लो, मुझे किसी ने ये बहुत अच्छा, और किसी ने यानी वो मदर टेरेसा वाला ऐसा चक्कर नहीं है, बड़े बड़े महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ नहीं, मेरे रिस्पेक्ट, मुझे किसी कलीग ने सिखाया। मेरी सारी चीजें मैं कलीग और दोस्तों के साथ ही सीखी हूँ। किसी कलीग ने सिखाया कि रुझान दिन में एक काम करो जो बहुत पसंद है और एक काम करो जो नहीं पसंद है, ठीक है। तो जो काम पसंद होता है वो तो अपने हैप्पी करते हैं। अब जब वो, क्योंकि नो एवरीथिंग सबकॉन्शियस माइंड है, पूरा फंडा है, अगर टाइम मिलेगा तो हम उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो एवरीथिंग इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो मैंने अपने माइंड को रोज जो चीज मुझे नहीं पसंद थी, क्योंकि पहले तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो भाई कस्टमर को टेलीकॉलिंग करनी होती है कि सर ये वो, तो मैं वो टेलीकॉलिंग करूँ, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन कोई चॉइस नहीं थी मेरे पास, क्योंकि जब तक मेरा सॉफ्टवेयर बिकेगा नहीं या मेरा वेबसाइट बिकेगा नहीं, तो मुझे तो पैसा कमाऊंगी कहाँ से, सिर्फ कोडिंग करने से थोड़ी मैं कमाने वाली हूँ। तो मैंने अपने दिमाग में बोल दिया कि रुझान एक काम तुझे दिन में करना है जो तुझे नहीं पसंद है, इसलिए धीरे धीरे मैं वो करने लगी। फिर मेरे को फील्ड में जाना पड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली यू मे बी द बेस्ट कोडर इन द वर्ल्ड, बट अल्टिल अनलेस यू आर नॉट, और 2-5 तब तो पैसे इतने भी नहीं थे, लेकिन जो भी आप मार्केटिंग मैनेजर रखो, सेल्स मैनेजर रखो, तो वो उतना नहीं जस्टिस करेगा जितना तुम जाके करोगे। इसलिए मुझे फील्ड में जाना नहीं पसंद था। तो मैंने अपने आप दिल को बोला कि नहीं भाई रुझान, एक काम ऐसा करो कि फील्ड में जाओ। अब जब मैं फील्ड में जाने लगी मैडम, एंड ट्रस्ट मी, फील्ड में से मैं फील्ड यानी कस्टमर्स को मिलने, मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। जितना कोडिंग से नहीं सीखी उतना फील्ड से सीखी हूँ। सिंपल एग्जांपल तो, मेरे साथ एक बंदा था जो फील्ड में जाता था एज ए सेल्स पर्सन, उसके साथ मैं फैक्ट्री, मेरे पास ओडो, नरोड़ा, नारोल, कलोल, ऐसे सब जगहों पे मैं अपना सॉफ्टवेयर और मेरा वेबसाइट बेचने जाती थी। तो मैं जब वहाँ जाती थी वो फैक्ट्री में, और मेरे बंदे को फैक्ट्री फ्लोर पे जाती थी, मैं पूछती थी भाई तेरा बॉस कहाँ है, इस कंपनी का बॉस कहाँ है। तो मेरे बंदे ने मेरे को बहुत अच्छी चीज़ सिखाई मैडम, जिसके गले में गोल्ड की चेन और हाथ में राडो का घड़ियाल, वो बॉस। आप समझो, बॉस लोग भी एसी कैबिन में नहीं बैठते थे, फैक्ट्री पे फ्लोर पे काम करते थे। आप ये सब चीज़ों से मैं बड़ी हुई हूँ। मैंने मेरे फादर को फैक्ट्री के फ्लोर पे काम करते देखा है। ये सब इंपॉर्टेंट है मैडम। सिर्फ ऑफिस में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करके, एसी कैबिन में बैठ के धंधे नहीं होते हैं, बिजनेसेस नहीं होते हैं, यहाँ होते हैं, और वहाँ पे सीखना भी मिलता है। तब मैंने क्या किया, इनिशियली तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, मतलब मैं खुद को बोलती थी नहीं रुझान तुझे करना है। और फिर अब मेरे को मैडम वो इतना पसंद है कि अब कोडर के लिए मैं 2 आदमी लगा दूंगी कि भाई यार सैलरी दे दे यार, खत्म कर, आराम से कोडिंग है। लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं वो दूसरे लोग नहीं कर सकते। Some pursue happiness, other creates it. Why this tagline? You know what is happiness? चलो डिफाइन करो थोड़ा, तुमसे भी कुछ सीखा नहीं, कब से मेरे को चला करवा रहा। चलो बताओ, you tell me what is happiness? Happiness is the one thing which when we like something to do or हाँ आया ना, and get all the things. हाँ हैप्पीनेस क्या, देखो आपने मटेरियल बना दिया, हैप्पीनेस को मटेरियलिस्टिक बना दिया आपने। कुछ अगर आपको मैं मोबाइल दूँ तो आप हैप्पी, और लेकिन आपको ये पता है ये मोबाइल अगर अभी आप हैप्पी कितनी मिनट रहोगे पता है? शायद एक दिन रहोगे, दूसरे दिन चलने भैया रखना यार, हो गया ठीक है। गाड़ी ली, चलो एक दिन दिखाया बिखाया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, नारियल बारियल फोड़ दिया, लोगों ने वाह वाह कर दिया, 2 दिन अच्छे जाएंगे जरा, फिर क्या। मैं आपको एक एग्जांपल दूसरे, फिर इसमें आगे जाऊंगी। एक दिन फॉर वॉट एवर रीजन, ये सुनने वाला एग्जांपल है, आई डोंट नो आपके पास टाइम क्या है, बट एनीवे फॉर वॉट एवर रीजन मैं किसी को मिलने गई थी, और वो उसकी सिस्टर के साथ गई थी। वो बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। अब वो उस दिन गाड़ी नहीं थी हमारे पास, उसके पास भी नहीं थी। हम लोग तो रिक्शा में बैठ जाने वालों में से, तो हमने टैक्सी करके बैठ गए और वहाँ पहुँच गए। अब टैक्सी में से उतरे, फिर वो भाई को, बड़े साहब को मिल के हम लोग नीचे आए। तो वो जो सिस्टर थी, इसलिए ऑब्वियसली उनके पास तो वो गाड़ी भिजवाई कि भाई रुझान को छोड़ दो। अब उनके पास थी जागुआर, ठीक है, अपने जागुआर में बैठ गए। मैंने कहा देखा अच्छी गाड़ी है भैया, बैठ गए आराम से। अब वो आगे उसका ड्राइवर बैठा था जो गाड़ी चला रहा था। अब नॉर्मली मुझे आदत होती है, और सर नॉर्म किसी की, जब हम लोग गाड़ी में बैठते कोई भी, तो वो ड्राइवर को बोलते एसी चालू कर, एसी बंद कर, गाना चालू कर, गाना बंद कर। ये हम बोलेंगे तो ही चलेगा वरना नहीं चलेगा।
ठीक है। अब बैठे तो एसी तो चालू ही था, ठीक है। अब उसने गाना लगाया, मैंने बोला गाना बंद कर भाई, मेरे को नहीं सुनना था गाना। अब उस ड्राइवर को ऐसी आइडिया, शायद उसने मुझे वो टैक्सी से उतर देखा होगा, उसको लगा होगा कि भाई ये मैडम ने कभी गाड़ी देखी नहीं है, कभी ड्राइवर वाली गाड़ी में बैठे नहीं है, तो फिर वो अपने करके गाना चालू, उसने मन में गाना चालू किया, मीन्स क्या कहते हैं, हमिंग कहते हैं। मैंने कहा भाई तू बंद करने बोला, समझ नहीं आई तेरे को। फिर उसने अपना कोई मोबाइल पे, मैंने कहा भाई गाड़ी चलाते मोबाइल नहीं उठाते, रख दे भाई, बिकॉज दैट पर्सन वाज थिंकिंग है मैडम ने कभी गाड़ी देखी नहीं है, ड्राइवर नहीं देखा। अभी 2-3 बार मेरे को मेरे बाद में तब उसको समझ पड़ा कि भाई ये मैडम पता है गाड़ी भी क्या है। और लेकिन ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको बता दूं, मैं जगुआर के अंदर बैठी, अंदर को कोई फर्क नहीं था, मेरी गाड़ी भी जो भी मैं गाड़ी यूज करती हूँ वो भी ऐसी ही है, राइट, खाली लेदर की सीट थी। फिर क्या था भाई, तो भाई एसी मेरी गाड़ी में भी ऐसी चलता है, इसकी गाड़ी में भी चलता है, तो क्या फर्क था वो गाड़ी में। आप समझ रहे हो मैं कहने की कोशिश क्या कर रही हूँ। इसलिए अब इसलिए उसमें मेरे को कोई हैप्पीनेस भी नहीं हुई, हाँ, और ना मैंने सेल्फी पाड़ी गाड़ी के सामने खड़े रखे मेरी जागवार। आप समझो, बिकॉज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। इसलिए मैं आपको लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ हैप्पीनेस क्या है। आप बताओ, आपने बता दिया, आप बताइए बेटा। एग्जैक्टली घूमने जाना, लेकिन जब घूमने जाओ मोबाइल खड़ना है, बनाओ, देखते हैं ना ये सब। अरे क्या है यार, तो फिर घर पे ही बैठ के करो ना, खोटा पैसा बिगाड़ते हो। हाँ फिर गोलगप्पा खाने की हैप्पीनेस होती है। See, I'll tell you one thing. Have you heard of spirituality? थोड़ा सुना होगा, ज्यादा भी सुन लेना। लोग स्पिरिचुअलिटी को जो जितना मुझे पता है, मैं जितना बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी इज अ वेज एंड मीन्स फॉर योर हैप्पीनेस। यू परस्यू स्पिरिचुअलिटी, यू डू मेडिटेशन, आपको उसमें से हैप्पीनेस आती है। मैं एक अच्छा से एक चीज बताऊंगी इसके बारे में। बिफोर दैट लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस हैप्पीनेस हार्मोन्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले ये वाला फंडा क्लियर करो। आपको हैप्पीनेस खुद करनी है, अंदर से होनी चाहिए। मैंने कहीं लिखा भी है, अब प्रीवियसली आई यूज्ड टू राइट आल्सो, तो मैंने कहा लिखा है कि भाई टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ और टू बिकम हैप्पी इन लाइफ व्हाट इज रिक्वायर्ड, यू नो, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। अब आप मुझे पूछोगे रुझान ये सेल्फ मोटिवेशन कैसे आएगा? सिंपल एग्जांपल दे दो, अच्छा एग्जांपल होगा, आपको मजा आएगी। एक लड़का है, वो अपनी फियांसी करीब 50 किलो की है, उसको उठा लेता है, ठीक है। लेकिन जब उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा गैस सिलेंडर बदलना है, लाना गैस सिलेंडर, वो वहाँ पड़ा है, बेटा बोलेगा नहीं मम्मी बैक पेन हो रहा है। गैस सिलेंडर आई थिंक 15-20 किलो का आता है। तो जो 50 किलो की लड़की उठी, वो उसकी सेल्फ मोटिवेशन है। ये मैं इसलिए मजाक में बताया क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको सेल्फ मोटिवेटर है। मुझे अभी भी पता है, मेरे स्कूल कॉलेज में हम लोग पिकनिक पे जाते थे, आप लोग भी जाते होंगे, तो पिकनिक पे जाओ तो कुछ ऐसे ग्रुप पे, हाय रुझान मजा ही नहीं आ रहा है, बिकॉज तो मैं बोलती कि क्या मैं नाचू तेरे सामने तो तुझे मजा आएगा। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, यू डोंट एक्सपेक्ट कि पीपल विल गो ऑन। सो आप लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन मत ढूंढो, मुझे हमेशा लोगों को कहना था इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको हैप्पीनेस हार्मोन्स की बात करूंगी। हमारे बॉडी में वो 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स है, 4, राइट। वो क्या है? पहला है एंडोर्फिन। ये सुनने वाली बात है, सबको बहुत काम लगेगा। एंडोर्फिन क्या हेल्प करता है पता है आपको? एंडोर्फिन पहले तुम ट्रिगर कैसे करें, जनरेट कैसे करें? एंडोर्फिन जनरेट करने के लिए इधर आप लोग जिम करो, तो जिम करने से क्यों ना आपको एंडोर्फिन ट्रिगर होता है। ट्राई करना। जिम करने का मतलब ये नहीं वेट उठाओ, जो भी आपको पसंद है, स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, जो भी पसंद है करो, ठीक है। या सेकंडली अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आपने, मैंने तो देखा ये गार्डन में वो लाफ्टर क्लब्स होते हैं, लाफ्टर ऑल्सो गिव्स यू ट्रिगर्स एंडोर्फिन। एंडोर्फिन वाला काम हो गया। फिर आता है, दूसरा आता है ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन। दूसरा आता है डोपामाइन। डोपामाइन तो सुना होगा आप लोगों ने, राइट। हाँ, अब डोपामाइन आप कैसे जनरेट करोगे? सिंपल फंडा बता दो, राइट। इसकी तो एक बुक भी लिखी थी किसी ने, मेकिंग योर ओन मैट्रेस। आप जब छोटे छोटे गोल्स अपने अचीव करोगे तो उससे आप डोपामाइन जनरेट करोगे। खुद के गोल्स एग्जांपल दो। इसलिए लोगों ने कहा कि बड़े बड़े लोग भी, अब सच झूठ तो पता नहीं, स्टोरी है उसकी रिसर्च है थोड़ी। अगर रिसर्च होती है तो वो बुक मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ रीड करने की, इसलिए रिसर्च वाली बुक है कि भाई जब आप आपके घर में खुद की मैट्रेस यानी जहाँ आप सोए उसको साफ करोगे, वो तकिए सही रखोगे, वो ब्लैंकेट को फोल्ड करोगे और ऊपर जो बड़ा मैट्रेस है वो लगाओगे, जो भी। अब आप वो करोगे, यानी आपने अपने दिन का फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया है, छोटा गोल आपने अचीव किया। तो दिस जनरेट्स डोपामाइन इन योर बॉडी। हाँ मैंने, और ऐसे एकदम क्लीन करो, देखो मैं करती हूँ इसलिए मुझे पता, अपना मैट्रेस एकदम वो बीच में क्रीज नहीं होनी चाहिए, एकदम यू फील हैप्पी, हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर डोपामाइन। स्मॉल गोल्स आपके लाइफ के अचीव कर रहे हो कि आज मुझे ये करना है, पूरे स्मॉल गोल्स, वो 10 साल के बाद मुझे क्या करना है वो वाला नहीं। सो दैट जनरेट्स डोपामाइन। सो दिस इज सेकंड। तीसरा पॉइंट है वो है सेरोटोनिन।
सेरोटोनिन यानी क्या होता है कि भाई जैसे कि अगर आप किसी को छोटी सी हेल्प कर लेते हो, पैसे से नहीं, आपके यहाँ काम वाली अगर शायद उसको मैडम पेट दुखता है तो उसको गोली दे दी, यू विल फील हैप्पी, उसके कोई बच्चे को कुछ पढ़ाना ABCD दे दिया, हैप्पी, यू नो दीज आर स्मॉल गोल्स। या कहीं मैं सब पेरेंट्स को बोलती हूँ, भाई पेरेंट्स लोग, मेरे बेटे को मैंने टेनिस में भेजा, स्केटिंग में भेजा, फलाना किया, ढकना किया, करो। लेकिन आपके बच्चों को सीनियर सिटीजन होम में तो थोड़ा नाटक ज़्यादा हो गया, अभी उसमें नहीं पढ़ने का है, लेकिन आपके बच्चे को हॉस्पिटल भेजो। जब वो बीमार लोगों को देखेगा ना, तब उसको पता चलेगा लाइफ की कीमत क्या है, फिटनेस की कीमत क्या है, हेल्थ की कीमत क्या है, यू नो, देन यू विल रियलाइज दैट, और उसमें पैशन जनरेट होता है। सो सेकंड पॉइंट है आपका ये क्या बोला मैंने, सेरोटोनिन, ठीक है। अब फाइनल आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का फंडा बहुत ही छोटा सा क्लियर है। पिक्चर देखी थी वो मुन्ना भाई MBBS, उसमें क्या आता था, जादू की झप्पी, व्हेन यू गो एंड यू हग योर पेरेंट्स हग यू, ठीक है। या आप किसी यू नो आपके पास वो, मेरे को तो डर लगता है, पेट डॉग हो, पेट कैट हो, जो भी हो, यू हग देम, दे हग यू, व्हाटएवर, सो दिस जनरेट्स ऑक्सीटोसिन। सो ये आप ये 4 रख लो आप, ये बाकी सब दिमाग में हैप्पीनेस सब छोड़ दो कि मोबाइल से हैप्पीनेस आती है, या ट्विटर पे लोगों ने अरे वो सोशल मीडिया पे ऐसे ठिंगे मारे हैप्पी होती है, उससे कुछ नहीं होता। मेरे को हैप्पी बर्थडे इतने लोगों ने किया, मेरे को हैप्पी बर्थडे नहीं किया, अरे क्या फर्क पड़ता है यार। तो इफ यू वांट योर सेल्फ टू बी वन ऑफ, क्योंकि अपने कितनी पूरे वर्ल्ड में आई थिंक अपनी 800 करोड़ पीपल लिव इन दिस वर्ल्ड, और इंडिया में 140 करोड़ पीपल लिव। इफ यू वांट टू बी recognized in one of those 140, at least in the first 1000, these things doesn't matter कि मेरे को ठिंगा मिला या नहीं मिला, आपका काम बोलेगा। सिंपल लास्ट एग्जांपल दे दूं इसी पॉइंट पे कि मान लो कि आप बोलोगे कि 2 साल पहले मिस वर्ल्ड या मिस ढकनी या पूछड़ी कौन बनी थी, किसी को याद नहीं है, लेकिन आपने अपने किसी फ्रेंड को हेल्प किया होगा ना, वो आपको जिंदगी भर याद रखेगी। One rule of your life which you have constantly followed? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हुआ ये कि मैं उसमें से बड़ी हुई हूँ, ये मेरे हमारे फैमिली की वैल्यूज़ है। पैसा आज है कल नहीं है, ठीक है, लेकिन जब सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग रखोगे, पहले से ये दिमाग में डाल दिया गया है। पहले मकर को भी समझ नहीं आता था यार, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि मेरी गुजरात GLS में मेरी स्कूल थी, तो मेरे को चलते चलते क्योंकि मेरा घर 10-12 मिनट दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस, या 12-15 मिनट, 10-12 मिनट है, तो मेरे को कभी भी साइकिल तो बहुत बाद में मिली थी, तो मेरे को चलते चलते मेरे जो डोमेस्टिक हेल्प के साथ हम चलते स्कूल जाते थे, जबकि गाड़ी घर में पड़ी रहती थी, तो भी होता था। लेकिन दिस इज द वैल्यू ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। What success means for you? Success is the failure is the fertilizer to success. I always say success is not important in life, it is always a byproduct. Success is always a byproduct of whatever, क्योंकि मैंने जो भी आप काम करोगे वो क्या कहते हैं, एक्सीलेंट करोगे, या आई मीन मेरे लिए पर्सनली कि मेरे को कुछ अचीव करना मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, इन टर्म्स ऑफ के मैं अगर वो चीज़ को अचीव किया, मे बी इवन इन योर वर्ड यू कैन कॉल इट सक्सेस ऑल्सो, बट नॉट एट एनी कॉस्ट। क्योंकि कई बार लोग जैसे कि नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी अगर हम लोग अभी थोड़ा जनरल बात करूँ कि अगर अभी हम लोग बात कर रहे हैं भाई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट नॉट एट एनी कॉस्ट। कि अगर लाइट्स आप देखो, हालत देखो, अगर आप ट्रेस काट लोगे, अभी हम परेशान हो ही रहे। मैं अभी धर्मशाला गई थी जस्ट फॉर अ वैकेशन, तो मैंने देखा कि वहाँ भी लकीली वहाँ के लोकल्स आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट एंड ऑल दैट, बट यू कैन डू नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि तुम्हें अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉस्ट पे तुम ये नेचुरल जो हमें भगवान ने दिया है और जो हमारे इम्पोर्टेंट भी है, अगर वहाँ जो प्योर हमने हवा खा के आई है, जो एनर्जी आती है, आप जब जाओगे आप खुद महसूस करोगे। या आप खुद कोविड में देखा था कितना कम पॉल्यूशन था। सो ना हमें उसको एक लिमिट रखनी चाहिए। सो दिस इज वेर आई वांट टू सी, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। अब मुझे बड़ा मेरे को पता है कि भाई मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो पीपल से कट कॉर्नर करो, झूठ बोलो, करप्शन करो। अरे भाई ऐसी बड़ा आदमी बन के क्या फायदा जब तुम रात को शांति से सो नहीं पाओगे? क्या फायदा कि रोज झूठ बोलोगे अपना वो अंदर, फिर क्या लोग वो क्या कहते हैं, पत्थर बन जाते हैं। हमें पत्थर नहीं बनना है, वी आर ह्यूमंस। भगवान ने हमें ह्यूमंस दी, हमें कॉन्शियसनेस दी है, हमें वो यूज करनी है। बड़ा बनने से एक लेवल के बाद पीपल विल ऑल्सो स्टार्ट नोइंग कि भाई अभी सब देखा ही, बड़े लोगों के तमाशे भी हमने देखे शादी पादी के फिर जस्ट टू मेक इट, वो क्या कहते हैं, थप्पड़ मार के गाल रखने के, भाई ये क्या जनरेट किया, इनकम जनरेट की। अरे किसकी इनकम जनरेट की? वो फॉरेनर वाले चंडी बनियान वालों की मेरा इन शॉर्ट, आप सक्सेस इज इंपॉर्टेंट बट इट इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ, एंड फेलियर इज फर्टिलाइजर टू सक्सेस।
फेलियर आएगा तभी सक्सेस आएगी, याद रखना, पहले से सक्सेस नहीं मिलने वाली। As you have founded various programs, so is there any new thing coming up? बहुत कुछ आ रहा है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको मेरे साथ थोड़ा ये प्रॉब्लम, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरे को लोग कहते हैं कि मेरा फोकस, अगर मेरे को सब कुछ करना है लाइफ में, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अब जब आप सब कुछ करना चाहते हो तो कई बार क्या होता है कि आधा आधा होता है, या फिर वो लो हैंगिंग फ्रूट जो नज़दीक वाला दिखता है वो हो जाता है। तो कमिंग बैक टू, ऑब्वियसली मेरे 3 प्रोजेक्ट्स बड़े आ रहे हैं, बड़े इन टर्म्स ऑफ, आई मीन सॉरी, आई शुड नॉट यूज द वर्ड बड़े, मेरे 3 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें एक मैं ये भी सोच रही हूँ, हल्ला बोल 3 भी सोच रही हूँ, फिर एक मैं क्या कहते हैं मेरा बिजनेस रिलेटेड है, एल्गो ट्रेडिंग वाला है, वो भी सोच रही हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट्स एन अनफॉर्चुनेट, क्योंकि नहीं पता है कि कई चीज़ें सब करनी होती है लाइफ में, तो आप लोग हैं। बट एनीवे, अल्टीमेट गोल यही है, 2 गोल है मेरे लाइफ में। एक तो कि ये जो मैं सेवा वाले काम करती रहती हूँ उसको और बढ़ाते जाना है, क्योंकि अभी मेरा स्टेम वाला प्रोजेक्ट है, पार्ट 2 भी आएगा। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स। हम बच्चियों को, लास्ट प्रोजेक्ट 800 बच्चियों को हमने किया, ये अभी, हाँ, यानी ये अब कमिंग ईयर और करेंगे हम लोग। फिर 1-2 और गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सोशल वाले। बट कई बार प्रोजेक्ट्स में डिले हो जाता है बिकॉज ऑफ परमिशंस या गेटिंग थिंग्स, फाउंडेशन में, सारे प्रोजेक्ट्स में आई ट्राई टू सी टू इट कि मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहे, बिकॉज एवरीबडी नोज वंस अ फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग यू कैन स्केल इट। ऐसे What do you think how self motivation plays a role to be a successful entrepreneur? इट इज़ द थिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि जब आप खुद मोटिवेट, क्योंकि आई टेल यू वन थिंग, बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब आप लेट से कि आपके फैमिली वाले कोई शादी में गए हो एग्जांपल, और आपको काम करना है, संडे आके काम करना है, अब या वो लोग एंजॉय कर रहे हो और आप वहाँ नहीं जा सकते बिकॉज यू सम डेडलाइन है, कोई कमिटमेंट है, कुछ भी हो, वहाँ ये सेल्फ मोटिवेशन काम लगता है। मैं बोलती हूँ ना, आपको संडे को आपके पियून को भी छुट्टी मिलती होगी, लेकिन आपको तो आपकी ऑफिस खोलनी है। ये एंटरप्रेन्योर वाला फंडा है, भले फिर बड़ा दिखा के और ये इतना कमा गया, ये यूनिकॉर्न बन गया। अरे उसको यूनिकॉर्न बनने में उसने कितने पापड़ बेले होंगे आप लोगों को नहीं पता है। और दूसरी बात कि आजकल तो यूनिकॉर्न, वो लॉस वाले यूनिकॉर्न ज़्यादा करते हैं, वो अलग है, उसमें भी नहीं पढ़ूंगी वरना वापस भी डाइवर्ट। बट कमिंग बैक टू मैडम, इतना याद रखना कि लेटस, मेरे फादर ने मुझे सिखाया था कि देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। अभी हमने थोड़ा चेंज करके किया, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करना ही है, और आपको क्या कहते हैं, तो ही आपको रास्ता मिलेगा, और रास्ता मिलता ही है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, लेकिन मिलता है, वो गारंटेड है। ठीक है, अभी मेरे को किसी ने बताया, वो सूर्य कुमार 30 साल की उम्र में IPL खेला, और अभी 34 साल की उम्र में वो कैप्टन बन गया T20 अपनी टीम का, इंडिया का कैप्टन, राइट। तो अच्छे काम करते जाओ, और डेस्टिनी, भगवान, मैं तो आई एम अ बिलीवर ऑफ कर्मा। Thank you so much, ma'am, for spending your precious time with us. We are glad to have such a grateful time with you. Thank you.